Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. As you know that in previous lecture we completed exercise number 4.1. Today we will proceed towards exercise number 4.2, and the points that will remain in the discussion that will be how we will be able to determine the roots of a quadratic equation by factorization method, and also we have to go over the word problems and we have to formulate the quadratic equations from the given information, and after that we have to discuss or we have to apply the quadratic this I mean to say that the factorization method, and after that we will be able to find the values, to find the roots of a quadratic equation. Part number first is find the roots of a quadratic equation. Given quadratic equation is given below by factorization method. Part number first is that x square minus 3x minus 10 equals to 0. As earlier discussed, if we are supposed to find the roots of a quadratic equation, अगर quadratic equation के roots हमने determine करने होंगे by using factorization method, what we do, we go for the simplification of the middle term. That is, here the middle term is 3x, and we know that the procedure for separating the middle term is that we break the middle term into two parts, and after that we go for the addition of these two terms which we get after breaking the middle term, and then we go for the product of these two terms, and the product must be equal the product of side terms. जैसे कि हमें पता है कि we have to break a middle term. अगर हमें middle term को break करना है, obviously ये दो सब टर्म्स में डिवाइड हो जाएगा या दो सब टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे. उन्हीं दो टर्म्स का अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, वी गेट बैक द मिडिल टर्म. अगर हम उन्हीं का प्रोडक्ट करते हैं तो देन वी गेट द प्रोडक्ट ऑफ साइड टर्म्स. ना हमें ये पता चल जाता है कि अगर हम दो नंबर्स को, दो टर्म्स को, दो कंपोनेंट्स को आपस में प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमें तीसरी जो टर्म आ जाती है, देन वी कैन से दैट दीस टू टर्म्स दे आर द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ साइड टर्म्स. अब क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए था कि आपका सर हम कहाँ से लाएंगे ये दो टर्म्स, तो यहाँ से क्लियर हमें मिल जाता है व्हेन वी गो फॉर द प्रोडक्ट ऑफ साइड टर्म्स. उसके बाद हमें पता है कि जिन दो टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं देन दे बिकम द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ साइड टर्म्स. हाँ, यहाँ तो साइड टर्म्स के जो प्रोडक्ट है दैट इज 10x square, then we have got for the factorization that is 2x into 5x. हमारे पास दो टर्म्स अब यहाँ पे आ जाती हैं. We get two terms, that is 5x and 2x. And what we have to do as per the procedure, we have to follow the pattern, और pattern के हिसाब से हमने इनका एडिशन करना है. लेकिन यहाँ पे माइनस दिया है and we know that is minus 5x. अगर हम इनका ऐसे करेंगे प्लस 2x तो ये हमारे पास पॉसिबल पेयर आ जाता है जिसका हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं. वी गेट द मिडल मोस्ट टर्म. नाउ वी कैन रिप्लेस दिस 3x बाय दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x, हाँ, 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. इसके बदले हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. और उसके बाद हम क्या करते हैं, वी चेक कोई इनमें से कॉमन टर्म मत है. जैसे कि यहाँ पे अगर हम x को कॉमन निकालते हैं तो दैट इट बिकम्स x into x हो गया x स्क्वायर प्लस into माइनस हो गया माइनस x into 5. जब हमने x को बाहर निकाला तो यहाँ पे 5 रह जाता है. इज इट क्लियर टू यू? यस, वेरी गुड, शाबाश. अब ऐसे यहाँ पे हम 2, क्योंकि 2 फैक्टर 10 का है, हाँ, या आप ये भी याद रख सकते हो कि जो हमें यहाँ पे टर्म आई है तो ये अंदर फिर से रिपीट होनी चाहिए. तो ऑब्वियसली ये रिपीट हो जाएगी. दैट इज 2 into x हो गया 2x माइनस प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस 2, 5 हो गया 10 इक्वल्स टू 0. तो दैट इज, और वी कैन राइट इट एज x माइनस 5 इंटू x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. ये दो है, इन दो के बदले हम एक ही टर्म लेते हैं. शाबाश. दैट इज ईदर x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. If we transpose this x, ये यहाँ पे minus 5 है, it becomes plus 5, and x ये plus 2 है, it becomes minus 2. Therefore, the roots of equation that is x square minus 3x minus 10 equals to 0. What do they become now? Then x equals to 5 comma minus 2. These are the roots of a given equation by factorization method. What you will do? As per assignment जो रिमेनिंग इसके पार्ट्स हैं, एक्सक्लूडिंग पार्ट नंबर 3 जो मैं खुद यहाँ पे अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसके बगैर जितने भी पार्ट्स वहाँ पे हैं तो they will you have to do the practice of those very parts
and after finding the zeros of the after finding the roots of that those equations, तो आप क्या काम करोगे, आप you will write them on your notebook. शाबाश. If you feel any problem, अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, you will contact on my personal number. हाँ, next part is root 2x plus 2x square plus 7x plus 5 root 2 equals to 0. As per procedure, what we have to do, we go for the product of side terms. Shabash, which is that is root 2x into 5 root 2, that is 5 into root 2 square, और इसके साथ x है, square root gets cancelled, 5 2 is 10. तो यहाँ पे 10x आ रहा है, तो 10x को हम जब possible factors निकालेंगे, that is 2x into 5x, when we go for the addition of these two terms, we get the middlemost term, that is 2x square plus 2x plus 5x plus 5 root 2 equals to 0. Very good, शाबाश. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, एक तो रूट 2 है और x है. अगर हम रूट 2 और x को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे x रह जाता है. रूट 2 वन रूट 2 x हो गया x स्क्वायर. शाबाश. प्लस अगर हम यहाँ से हमने रूट 2 बाहर निकाला तो ऑब्वियसली यहाँ पे रूट 2 होना चाहिए. दैट इज रूट 2 into रूट 2 हो गया रूट 2 स्क्वायर, तो दैट स्क्वायर रूट गेट्स कैंसल्ड एंड हियर वी गेट 2x. क्लियर. प्लस अब हम यहाँ से 5 इन दो में से कॉमन है तो 5 को बाहर निकालते हैं, दैट इज x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0. वेरी गुड. तो we can write it as x plus root 2 into root 2x plus 5 equals to 0. Either x plus root 2 equals to 0 or root 2x plus 5 equals to 0. Therefore, or we can write it as x equals to minus root 2 or root 2x equals to minus 5. X equals to minus 5 divided by root 2. समझ आ रहा है बेटा? Very good, shabash. Therefore, we get the values of x as minus root 2, that is roots of a given equation as minus root 2 comma minus 5 by root 2. These are the values of, these are the roots of a given equation, that is जो हमारे पास called equation है root 2x square plus 7x plus 5 root 2 equals to 0. As per this factorization method, we are now able to determine the roots of this equation also. और जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स है, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, वो आप होम असाइनमेंट, वो आपके लिए होम असाइनमेंट है. शाबाश. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द इक्वेशंस गिवन इन एग्जांपल नंबर फर्स्ट. जो एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास है आपकी टेक्स्ट बुक पे है, दैट इज जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैड 45 मार्बल्स. वी आर गिवन दैट जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास 45 मार्बल्स है. इफ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो कि जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं और जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं. वी नो दैट वी आर गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जो है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स बेटा कितने हैं? वेरी गुड, 45 है. लेट वी कैन राइट लेट मार्बल्स विथ जॉन. अगर जॉन के पास bx, अगर हम मान लेते हैं कि जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं? x. टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? 45. अब हमें पता चला कि जॉन के पास x मार्बल्स है प्लस, और जीवंती जो है दूसरे के पास भी मार्बल्स है, लेकिन हमें पता नहीं है. लेकिन टोटल जो मार्बल्स दोनों के पास है वो है 45. Therefore marbles with जीवंती we can write as 45. इस x को हम ट्रांसपोज करते हैं, it becomes 45 minus x. Therefore we can write as therefore marbles with जीवंती. जीवंती के पास कितने मार्बल्स रह गए बेटा? शाबाश, 45 minus x. Now as per क्वेश्चन के हिसाब से, after losing 5 marbles each, after losing 5 marbles each, जब दोनों के पास 5 मार्बल्स गुम हो जाते हैं दोनों से, तो वहां पे क्या रहे? therefore marbles left with जॉन. जॉन के पास कितने रह जाते हैं? इसके पास x थे, अगर 5 इसके गुम हो जाते हैं, that is x minus 5. क्लियर? शाबाश. ऐसे ही मार्बल्स लेफ्ट विद जीवंती. जीवंती के पास कितने रह जाते हैं?
45 minus x minus 5, that is 40 minus x. Now according to question के हिसाब से the product of marbles now left, जो अब after losing 5 marbles each, जब इन दोनों के पास 5-5 मार्बल्स एक हो जाते हैं, ठीक है ना बेटा, तो जितने अब इनके पास मार्बल्स रहते हैं उसका प्रोडक्ट है 124 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। x minus 5 into 40 minus x equals to 124। वेरी गुड। अब क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा x into 40 minus x minus 5 into 40 minus x equals to 124। हाँ, 40 into x स्क्वायर 40x minus x स्क्वायर minus 200। वेरी गुड। 5 0 0 5 4 20 माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, दैट इज 5 इंटू x हो गया 5x इक्वल्स टू 124। 40 प्लस 5 या पहले इस फॉर्म में लाएंगे माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 इक्वल्स टू 124। ठीक है बेटा, शाबाश। दैट इज माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए हैं या नहीं है। ठीक है ना बेटा, दैट इज माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 equals to 0. Now this is of the form of ax square plus bx plus c equals to 0. यहाँ पे हमारे पास एक quadratic equation आती है and we have to determine the value of x. So to find the value of x, you have to follow the same pattern. You have to go for the factorization or subtraction of middle term, that is 45x को हमने break करना पड़ेगा दो numbers में से, for example P and Q में। अगर हम उनका एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे that we will get the 45x। अगर उन्हीं का प्रोडक्ट करेंगे that will be the product of side terms। and I hope that इसके आगे आपको ये खुद आएगा करना। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी you will call on my number, ठीक है ना, that is all, okay।